Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you all will be fine. Our today's topic is The Little Girl. It is from class 7th English and third section of this book, that's short stories. The Little Girl is a short story. Dear students, this story is about a little girl whose feeling for her father changes from fear to understanding, and it will feel all the children in the same way. The title of the story refers to the main character that we will come across, the little girl named Kezia. And this short story, it is written by Katherine Mansfield. Katherine Mansfield was a prominent New Zealand modernist short story writer and poet who was born and brought up in a colonial New Zealand and wrote under the pen name of Katherine Mansfield. Now moving to our topic, the short story The Little Girl. All fathers are not alike. Some show their love and affection for their children and play with them. Others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instructions and advice. Read the story and find out what the little girl's father was like. सभी बच्चे एक जैसे, सभी बाप, सभी वालिद, सब फादर्स एक जैसे नहीं होते हैं. सम शो देयर लव, कुछ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को उनके साथ खेलते हुए, उनके साथ वक्त गुजारते हुए उनको प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त ज़ाहिर करते हैं, उनके साथ खेल के, उनके साथ वक्त गुजार के. और कुछ बाप ऐसे होते हैं वो भी अपने बच्चों से प्यार करते, सभी बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करने का, प्यार ज़ाहिर करने का, शफ़क़त उनको ज़ाहिर करने का एक अलग अलग तरीका होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उनके साथ वक्त गुजारते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके हर एक काम में शरीक होते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से प्यार तो करते हैं लेकिन उनको वक्त नहीं दे पाते, उनके साथ वक्त नहीं गुजारते हैं. उनका भी कुछ, या तो उनकी तबीयत ऐसी होती है या उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं और उनके बच्चे ये समझते हैं कि वो हमसे प्यार नहीं करते हैं और उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस, उनको सिर्फ नसीहतें, उनको सिर्फ हिदायतें देते रहते हैं. Read the story and find out what the little girl's father was like. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. A figure to be feared means a person to be feared. And who is the figure to be feared here? Is Kezia's father. So he refers to the Kezia's father. To the little girl is here Kezia. So the opening line of the story is indicating that Kezia has fear. Kezia has the fear that Kezia has for her father. And as she is fearful of her father, she tries to avoid him and tries to remain away from him. Little girl, to the little girl, एक लड़की, छोटी नन्ही सी बच्ची जो है, कीजिया जिसका नाम है, he was a figure to be feared and avoided. He, यहाँ पे उसके फादर जो हैं, कीजिया के फादर, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है कि नन्ही सी बच्ची जो है कीजिया, उसके लिए उसके वालिद जो है, उसके बाप जो है,
वो एक ऐसी शख्सियत है जिससे वो बहुत ज़्यादा डरते हैं और उस डर की वजह से वो उसका सामना वो उससे दूर रहना चाहती हैं, वो उसका सामना नहीं करना चाहती है। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." So every morning before going to work, Kizia's father would visit her room and give her a casual kiss. And in reply, Kezia would say, "Goodbye, father." So this action of Kezia's father shows his love for Kezia. हर सुबह काम से जाने से पहले कीजिया के जो अब्बू हैं वो हर सुबह काम से जाने से पहले उसके कीजिया के कमरे में जाते हैं और उससे चूमते हैं। एक ऐसी किस जिसको हम कैजुअल यहाँ पे एक गैर रस्मी तौर यानी जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिसका कोई असर कीजिया पे नहीं होता है। टू बी शी रेस्पॉन्डेड, जिसके जवाब में वो अपने वालिद साहब से बोलती हैं गुड बाय, खुदा हाफिज़ या अलविदा अब्बू। तो वो ये कहकर उसका जवाब देती हैं गुड बाय फादर। And oh, the glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Glad sense of relief means here feeling relaxed. Glad sense of relief means feeling relaxed. And fainter means to lessen or to reduce. The writer says that when Kezia heard that her father's carriage was going away from home and he was leaving home, and the sound became fainter and fainter, that means the sound reduced. Kezia would feel relieved. She would have a sense of relaxation that her father had left because she feared her father. So she was relieved when he left home. और जब उसके अब्बू घर से जाते हैं काम के लिए तो वो एक अलग सी खुशी राहत महसूस करती है कीजिया जब वो सुनती है कि उसकी गाड़ी का जो शोर है, उसकी गाड़ी को वो आवाज़ है वो धीरे धीरे धीमी पड़ जाती है, यानी कि वो घर से दूर हो जा रही है। जितना जितना वो दूर हो रही है उसकी गाड़ी उतना उतना उसकी आवाज़ कम आती है और वो एक अलग ही खुशी उसको महसूस कर एक अलग ही खुशी उसको होती है, एक अलग ही राहत महसूस करती है क्योंकि वो अपने बाप से बहुत ही डरती है, इसलिए वो रिलैक्स फील करती है जब वो घर से जाते हैं। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. In the evening when Kizia's father would return home, she would hear his loud voice, and this loud voice again made her afraid of him. जब शाम को उसके अब्बू वापस आते हैं काम से तो वो कीजिया जो है वो सीढ़ियों के बीच में सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं और वो उसकी ऊंची आवाज़ जो है वो जब सुनती है तो वो बहुत ही फिर से डर जाती है। उसकी जो ऊंची आवाज़ जो होती है, उसकी जो आवाज़ है लाउड वॉइस, जिसकी वजह से वो बहुत ही डर जाती है। Bring my tea into the drawing room. Hasn't paper come yet? Mother, go and see if my paper is out there and bring me my slippers. When Kizia's father returned home, he would start ordering. तो वो हुक्म चलाना शुरू करते हैं जब वो घर से बाहर आते हैं। All different things he would order that tea be served to him in the drawing room. तो वो बहुत सारी चीज़ों का हुक्म चलाते हैं
उनके लिए पूछते हैं कि मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं पहुंची, मेरी चाय मुझे दीजिए, ड्राइंग रूम में लाइए। He wanted the newspaper. He would ask her mother to go and see if the newspaper was there outside the house. वो अपनी माँ से बोलते हैं कि अब जाइए माँ, आप जाइए और देखिए बाहर न्यूज़पेपर आया है कि नहीं, और मेरे लिए न्यूज़पेपर लाइए और मेरे लिए मेरी स्लीपर्स लाइए। Kizia's mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." Now, Kizia's mother would call Kizia to remove her father's boots in order to make her obey. And she would say that if she was a good girl, then surely she would obey her command. अब कीज़ा की माँ जो है वो बोलती है, वो कीज़ा को आवाज़ देती है कि एक अच्छी बच्ची की तरह, अगर आप एक अच्छी लड़की हो, अच्छी बच्ची हो, तो आप आओगी और अपने फादर जो है, अपने अबू के जूते निकालोगी। तो उसकी माँ भी जो है वो उसको कहती है कि अगर आप एक अच्छी बच्ची हो तो आप अपनी माँ और अपने बाप का हुक्म मानो, उनका कहना मानोगी एक अच्छी बच्ची की तरह। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still, across the hall and push open the drawing room door. Here slip down means come down quietly and unwillingly. So again we see the Kizia's fear for her father. That's why she would come down the stairs unwillingly, quietly, because she did not want to face her father. तो कीज़ा जो है वो बहुत ही आहिस्ता से और बहुत ही बिल्कुल, उसका दिल नहीं चाह रहा है कि वो अपने बाप के सामने जाए, उसको फेस करे, तो वो बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीमे से आती है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे आती है। और जब वो एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, तो वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल उसका मन नहीं होता है नीचे आने का, अपने बाप को फेस करने, उसके सामने आने का या उसका सामना करने का उसको बिल्कुल मन नहीं होता है। वो बिल्कुल उसके सामने नहीं जाना चाहती है, वो उसको अवॉइड करती है क्योंकि वो बहुत ही उससे खौफज़दा होती है। But that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Now just imagine Kizia's father sitting in the drawing room on a sofa wearing his glasses, and he is looking at Kizia over the spectacles, and now the way he looked at her terrified her. She was horrified because maybe it seemed to her that he was staring at her. अब यहाँ देखिए कीज़िया जो है उसका, देखिए कि वो किस तरह से अपने बाप से कितना डरती है, कि उसके बाप जो जब वो ड्राइंग रूम में आती है तो उसके अब्बू ने एक चश्मा पहना होता है और वो चश्मे के ऊपर से उसकी तरफ और इस तरीके से उसकी तरफ देखते हैं। दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल, जो बहुत ही उसकी वजह से उस नज़र की, जो उस पर वो नज़र रखते हैं, देखते रहते और इस तरह से देखते हैं, इस तरह से वो उसकी तरफ देखते हैं, घूरते हैं उसको। That what causing fear to कीजिया, जो बहुत ही वो उसकी वजह से बहुत ही खौफनाक नज़र से वो देखते हैं, जिससे वो कीजिया जो है वो she was horrified, वो बहुत ही खौफज़दा होती है, वो बहुत ही डर जाती है क्योंकि उसको पूरा पता होता है कि वो उसी की तरफ देखते
उसके फादर जो हैं वो बिल्कुल उसकी तरफ घूरते रहते हैं, जिसकी वजह से कीजिया बहुत ही डर जाती है। Well, Kezia, hurry up and pull up these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो उसके बाप जो हैं, Kezia was reluctant in her work because she was not willing to face her father. So she was reluctant in her work. She was slow in her motion, and so her father would tell her to hurry and remove his boots and keep them out of the room, and then he would ask her if she had been a good girl that day. तो उसके जो अबू हैं वो उसको बोलते हैं कि कीजिया, जब वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से आ जाते हैं, क्योंकि उसका मन नहीं होता है उसको फेस करने का, वो बहुत डर जाती है अपने बाप, इसलिए वो बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल मतलब ना चाहते हुए भी वो उसके साथ अपना काम बिल्कुल धीमे धीमे करती हैं, बहुत ही स्लोली करते हैं। तो उसके पापा जो है, उसके अब्बू जो हैं, वो उसको बोलते हैं जल्दी करो और मेरे जूते निकालो एंड टेक देम आउटसाइड, और उनको बाहर रूम से बाहर रखो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, और उसको ये भी पूछे क्या आज आपने कोई शरारत तो नहीं की, क्या आप बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह आज रही। You do not, I do not know, father. And Kezia replied that she did not know. So why was she stammering? Why was she stuttering? Because she was not confident. A person is not confident when she or he has a feeling of fear. Here we see that Kezia was stuttering. She was stammering. यहाँ हमने देखा कि कीजिया जो है आई डू डोंट नो फादर, वो हकला रही है। वाई वाज शी स्टैमरिंग, क्यों वो हकला रही थी। बिकॉज शी हैज़ अ फीलिंग ऑफ फियर टू हर फादर, वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी अपने बाप से, और वो बेबाक नहीं थी, वो पुरएतमाद नहीं थी, उसको अपने बाप पे वो उसको एतमाद नहीं था कि वो उससे प्यार करता है, लिहाजा वो उससे बहुत डर जाती थी वो, और वो हकला रही थी। You do not know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. Here, stutter means to stammer, to speak with pauses. So here Kezia's father is copying Kezia and stammers like she did. He says to her that if she stuttered like that, then her mother would have to take her to the doctor. जब कीजिया बहुत ही हकलाते हुए अपने बाप से बोलती है कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि मैंने कोई शरारत की, मैं किस तरह की आज दिन में मैंने क्या किया, तो वो उसको उसकी नकल करते हैं, वो वो जो हकलाती रहती है अपने बाप के सामने, उसका नकल करते हैं उसके अब्बू उसको, और बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा ही हकलाना शुरू किया तो आपकी माँ जो है वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अगर आप इसी तरीके से हकलाने लगी। So dear students, there are some questions arising here. That what was the name of the little girl? That students, her name was Kezia. To the little girl who was a figure to be feared and avoided. छोटी बच्ची के लिए कौन सा वो इंसान था जिससे वो बहुत ज़्यादा डरती थी, जिससे वो बचना चाहती थी, सामना नहीं करना चाहती थी, उसको टालना चाहती थी। To the little girl, her father was a figure to be feared and avoided. Why was Kezia afraid of her father? क्यों वो उससे इतना डरती थी? Kezia was afraid of her father's strictness and terrifying angry looks. जिस तरह से वो खौफनाक नज़रों से उसकी तरफ देखते थे, गुस्से वाली नज़रों से, शरारत भरी नज़रों से,
उससे देखते थे अपनी बच्ची को। इंस्टेड ऑफ टेंडर लव एंड अफेक्शन, हालांकि उसको बिल्कुल शफकत, प्यार, मोहब्बत से उसे देखना चाहिए। So she would get harsh words of scolding and physical punishment. इसके बरकस वो उसके पापा जो है वो उसको बहुत ही सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करते थे और उसको कभी कभी फिज़िकल पनिशमेंट भी उसको कभी कभी मार भी पड़ती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, उससे बहुत ज़्यादा डर रही थी अपने बाप से। Dear students, who were the people in Kija's family? Dear students, Kija's family had 4 people in all. Her very strict father, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे उसके फादर। हर मदर, उसकी माँ। हर सॉफ्ट हार्टेड ग्रैंड मदर, उसकी बहुत ज़्यादा अच्छा दिल रखने वाली, बहुत ही प्यार मोहब्बत करने वाली उसकी दादी। एंड लिटिल कीजिया हरसला, और उसकी और खुद कीजिया, यानी 4 लोग थे उसके फैमिली में। What was Kija's father's routine before going to an office and coming back in the evening? Dear students, before going to an office, Kija's father would come to her room, giving her a casual kiss and leave for work. He would return in the evening and demand that tea is brought into the drawing room and ask for his papers and slippers in a loud voice. So, dear students, this is all today, and in the next part, we will discuss this story. Thank you.